Today, the title of my message is Supply of God's Wisdom. आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है प्रभु की बुद्धि का सप्लाई। Amen. We heard about God supplying finance. प्रभु हमने सुना है कि प्रभु कैसे हमारी आर्थिक स्थिति में हमें सहायता करते हैं। You know, we have learned about how God supply all our needs. हमने देखा कि प्रभु हमारे जरूरतों का कैसा प्रयोजन करते हैं। And we learned about how God supplies the healing to the body. तो हमने देखा कि प्रभु हमारे शरीर में कैसे चंगाई देते हैं। So I have been praying and asking God, what should I preach this Sunday? मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु इस इतवार को मैं क्या प्रचार करूं। And the Lord spoke to me about wisdom. और प्रभु ने मुझे बुद्धि के बारे में बताया। You know, then I was pondering over wisdom and then I said, it is the God who supplies wisdom to us. तो फिर मैं उसके ऊपर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे बताया कि वो प्रभु ही है जो हमें बुद्धि का प्रयोजन करता है या देता है। Before we learn from some small insects the wisdom, I will put you a foundation how this supplies comes from God. तो पहले जो है ये चींटियों के बारे में सीखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से हमें आती है। If you turn your Bible to Philippians chapter 1 verse 19, अगर आप फिलिपियों का 1:19 में जाएंगे, the Bible says, for I know that this shall turn to my salvation, right, or deliverance, through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। Now understand this, for I know that this shall turn to my salvation. That means the supply of wisdom will turn to salvation. देखो ये मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा, ऐसा वचन कहता है। It's a supply of wisdom. यानी प्रभु की बुद्धि। So where there is wisdom, there is no clashes. यानी जहाँ पर उसकी बुद्धि है वहाँ पे कोई क्लैश नहीं So होगा। that's in Philippians, Paul is saying, for I know, say with me, I know, louder. क्योंकि मैं जानता हूँ, कहो मैं जानता हूँ, I know. मैं जानता हूँ That this, what is this? The wisdom of God यानी उसका मतलब है परमेश्वर की बुद्धि shall turn to my deliverance or my salvation. हमारे प्रतिफल का और मेरा उद्धार होगा। So how? Through your prayer. कैसे होगा? तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा। And here the specific word when I was reading the scripture, the supply of the Spirit of Jesus Christ. Very यहाँ पे important. खास वचन में देख रहा था जो वचन कहता है कि यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा। That means the supply of Spirit of Jesus is required to each one of us in these last days. यानी हम सबको ये अंतिम दिनों में इस मसीह की आत्मा के दान की जरूरत है। So how do we gain the supply of wisdom? तो हमें ये बुद्धि का ज्ञान कैसे मिलेगा? It is through the Spirit of Jesus Christ. यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। So that's what in Proverbs chapter 13, 24 to 28 if we read. नीति वचन 13 और 24। There are 4 little things upon the earth, पृथ्वी पर कुछ चार छोटी चीजें हैं, but they are exceedingly wise. बहुत ही बुद्धिमान हैं। The Bible says that he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. नीति वचन 13:24 ऐसा कहता है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। Hallelujah. We love our children, but God says the wisdom disciplines the son or a daughter. तो हम तो हमारे बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है कि जो बुद्धिमान है वो अपना बेटा या बेटी को जो है पर छड़ी चलाता है, यानी उसे ताड़ना भी देता The है। stick is nothing but the wisdom that you gain from God. छड़ी और कुछ नहीं, वही है जो परमेश्वर से जो ज्ञान हम पाते हैं। Hallelujah. Now the Bible is saying that the 4 little things gives us wisdom. बाइबल कहते हैं छोटी सी 4 चीजें हैं जो हमें बुद्धि प्राप्त The कराती Bible says, but they are exceedingly wise. लेकिन बाइबल कहता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान है, अतिशय बुद्धिमान है। And number 1 is ant. पहला है चींटी। Go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise. नीति वचन 6:6 कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। Then next verse 7.
which having no captain, overseer or ruler. उनका ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला। Now think about a small ant doesn't have captain, doesn't have overseer. अभी सोचो इसके बारे में, एक छोटी सी चींटी, उसका ना कोई प्रधान है, ना कोई प्रभुता And there is करने no वाला, ruler for that. न कोई प्रभुता करने वाला। Go ahead next. Provides her supplies in the summer and gathers her food in the harvest. तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है Okay. और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। Read verse. 9वां वचन। How long will you slumber, O sluggard? When will you rise from your sleep? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? Okay. Then verse 10. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। So shall your poverty come on you like a prowler and your need like an armed man. तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। Hallelujah. Now we need to understand how do these ants get the supply of wisdom for them without ruler, without captain, without accountability. How do they gain the wisdom? How do they get the supply of wisdom? तो अबे यह बात हमें समझने की जरूरत है कि एक चींटी को देखो, वो कैसे इतने बुद्धिमान है, बिना कोई उसके ऊपर कोई न्यायी नहीं, ना कोई प्रधान है, ना कोई प्रभुता करने वाला It व्यक्ति। is the Spirit of God is the one who supplies all things. देखो, प्रभु की आत्मा है जो उसको सारे भोजन वस्तु देती है। Means God has got everything for you. यानी परमेश्वर ने वैसे तुम्हारे लिए भी सब कुछ रखा हुआ That है। means God has given everything for you through the Holy Spirit. यानी प्रभु ने तुम्हें पहले से सब प्रयोजन दिया हुआ है पवित्र आत्मा It के is द्वारा। not the man of God, it is not the pastor who supplies the wisdom, it is the Spirit of Jesus. Through the Holy Spirit, He supplies the wisdom to you. वो प्रभु का दास या परमेश्वर का पासवा नहीं है जो तुम्हें बुद्धि प्रदान करता है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा पहले से वो बुद्धि तुम्हारे लिए प्रयोजन की हुई है। You know, this morning I want to tell you the Holy Spirit will supply healing, blessings, giftings and all the spiritual realm visions and dreams to you. तो मैं बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर की आत्मा है जो तुम्हें चंगाई देगी, तुम्हें छुटकारा देगा और सारे आशीषें देगा जो पहले से उसने आपूर्ति से दी हुई है। Even the Spirit of God will supply the deliverance for you and me. तो परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आपूर्ति से छुटकारा भी देगा And it will take you to the next level. और तुम्हें एक अलग स्थल पर ले जाएगा So that we live in the spirit realm. ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में जिए। So when we are in the spirit realm, तो जब हम ये आत्मिक क्षेत्र में होते the हैं Holy Spirit will supply everything lavishly according to the purpose of His kingdom. तो पवित्र आत्मा हमें बड़े उद्धारता से उसके उद्देश्य के अनुसार सब चीजें दे देगा। Think about when God started supplying the wisdom, you will be elevated to the next level. सोचो जब प्रभु अपनी बुद्धि को आपूर्ति से देना शुरू करेगा तो तुम इतने बुद्धिमान हो जाओगे। Hallelujah. The Holy Spirit will supply the wisdom from heaven, not from the earth. तो प्रभु तुम्हें ये जो है बुद्धि पृथ्वी से नहीं लेकिन स्वर्ग से ये आपूर्ति दे देगा। All good things and good wisdom comes from the presence of God. सारी जो भले चीज है और सारी अच्छी चीजें वो परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। So what we need to do? तो हमें क्या करना है? Supply is there. पहले ही वो प्रयोजन किया हुआ है Supply is coming. और वो प्रयोजन तो आ रहा है हमारे पास। Supply comes on only one condition. लेकिन एक ही शर्त है उसे प्राप्त करने के So लिए। if I go after the Sunday service, I go to home इतवार की सभा के बाद जब मैं घर जाता हूँ and I'm thinking about next Sunday.
तो मैं सोचता हूँ अगले इतवार के विषय में What should I preach, Lord? मुझे क्या प्रचार करना है Or प्रभु? any other meetings that comes in the middle, I'm thinking about those things. या तो बीच में और कोई मीटिंग है तो उसके बारे में मैं सोचते रहता हूँ। God has given His word. प्रभु ने तो अपना वचन दिया God हुआ है। has given the Holy Spirit. प्रभु ने अपनी आत्मा भी दी God है। has given the supply. प्रभु ने हमें सब चीजें दी हुई There is है। a supply source in heaven. तो प्रभु का जो स्रोत है वो स्वर्ग से है। But how do I get that supply of wisdom to myself? तो मैं ये बुद्धि का जो स्रोत है उसे मैं अपने जीवन के लिए कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? Only when I demand it comes to me. ये जब मैं उसकी डिमांड करूंगा तभी ये मेरे पास आएगी। Hallelujah. If you demand on the Spirit of God, the supply will flow to your spirit. अगर तुम ये Come on. डिमांड करोगे परमेश्वर की आत्मा से तो ये तुम्हारी आत्मा में आएगा। What is the demand means? डिमांड मांग, ये मांग का मतलब क्या है? Demands means you seek after something that you required of. तो डिमांड का मतलब ये, मांग का मतलब क्या है? जो चीज तुम्हें जरूरत है उस चीज की तुम खोज कर रहे What you हो। want, the supply, there is a source, you need to go for it. तो जो स्तोत्र है और वो उस चीज से तुम अपेक्षा कर रहे हो उसके पीछे तुम्हें जाना है। You know, when early days, I used to see the people praying for demon deliverance. पहले के दिनों में जब मैं लोग जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे उनमें प्रार्थना कर रहे थे, And जब I मैं was उन्हें so देखता था interested to see how they cast out the demons. और उसमें मुझे बहुत दिलचस्प था देखने के लिए कि ये कैसे दुष्ट And आत्मा how को the निकाल रहे हैं। people are coming and give the testimony, and I see they're laying their hands and praying, and next moment their bones pain has disappeared. I used to wonder how they're getting this supply. तो मैं देखता था कि लोग आके गवाही दे रहे कि कैसे किसी ने उन पर हाथ रख के चंगाई के लिए प्रार्थना की और उनकी हड्डियां चंगी हो गई। तो मेरे अंदर एक बड़ी उत्सुकता आने So one लगी। day I locked out to my room and I was praying and praying and praying. और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कमरे में मैंने कड़ी लगाई और अंदर में दुआ कर रहा था। And I started to visualize the people in the hospital. तो मैं ऐसे कल्पना करने लगा कि अभी बहुत सारे लोग हैं अस्पताल में And also at the same time I'm visualizing how Jesus healing the sick people. और उस समय और एक तरफ मैं ये भी कल्पना कर रहा था कि यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगा कर रहे And हैं। then I started to demonstrate, Lord, every sick person in the hospital be healed in the name of Jesus. और फिर मैं ये जो है मेरे कमरे में मैं घोषणा करने लगा कि प्रभु जितने लोग अस्पताल में हैं वो चंगे हो जाएं। And I'm demanding and seeking the Lord for the healing, for the miracles, for the signs, for the wonders, and answers for the prayers for the people. और फिर मैं प्रभु से वो मांग करने लगा लोगों की चंगाई के लिए, उनके छुटकारा के लिए, और मैं ये देख रहा था, अपेक्षा कर रहा था कि वो चंगे हो चुके So हैं। that means the demand that you have, that means that you seek for the supply of wisdom, it will come to you. You will receive it. यानी तुम जो भी मांग करते हो वो बुद्धि के लिए, वो जरूर तुम्हें वो देंगे। Hallelujah. Say with me, Lord, I am seeking after you. कहो कि प्रभु मैं तेरी खोज में हूँ। Lord, I'm seeking after you. प्रभु मैं तेरी खोज में हूँ। I'm seeking after the supply. प्रभु मैं उस आपूर्ति का पीछा कर रहा हूँ। I'm seeking after your word. प्रभु तेरे वचन की मैं खोज कर रहा हूँ। Grant it to me, Lord. प्रभु तू मुझे उसे दे दे। The supply of God's wisdom is coming upon you this morning in Jesus' name. आज सुबह प्रभु का सप्लाई, बुद्धि का जो सप्लाई वो तुम पर आ रहा है यीशु के नाम में। We need to demand for the wisdom of God in this end times. इस अंतिम दिनों में प्रभु से हमें मांग करनी है कि मुझे ये बुद्धि चाहिए। And God will release the supply of wisdom to each one of us. तो प्रभु ये बुद्धि को हमें पूरी पूर्णता से दे देंगे। And when He releases, you feel it. Something is coming inside you. You need to receive it by faith. And the wisdom of God will operate in your office, in your business, in your family, with your children in Jesus' name. तो जब ये बुद्धि की मांग करते हो तो आपकी आत्मा में आपको समझ आएगा कि ये आपके अंदर आ चुकी है और ये बुद्धि आपके सारे कामों में आपको सहायता करेगी। हो सकता है आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके हर एक कामों में। To whom God will deposit this wisdom? तो प्रभु किसको ये बुद्धि देंगे या किसके अंदर ये डालेंगे? One who seeks or one who demands and one who is thirsty for the wisdom of God. वो जो उसकी खोज करता है, जो मांग करता है, और तीसरी बात है जो उसके लिए प्यासा है। Hallelujah. Are you hungry for God's wisdom? क्या आप प्रभु की बुद्धि के लिए भूखे हो? Hallelujah. I always ask God, fill me with your wisdom. मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर मुझे तेरी बुद्धि से Lord, I need the knowledge of this world. प्रभु इस संसार के ज्ञान का मुझे I need the जरूरत है। knowledge of heaven. मुझे स्वर्ग की ज्ञान का भी जरूरत And है। God gives the knowledge.
प्रभु ज्ञान देता है, But we need the wisdom to understand the knowledge. लेकिन उस ज्ञान को समझने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। Hallelujah. Yes, the anointing is upon my life. Anointing is upon your life. हाँ, वो अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर है, आपके जीवन के ऊपर Maybe है। that for that particular time the anointing comes upon me to meet all your needs. शायद वो हो सकता है उस समय के लिए वो अभिषेक मेरे ऊपर आता है ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। But think about you demanding, you thirsting, you seeking, the supply will be continuously upon your life. आप सोचो इसके बारे में, जब आप उस चीज का मांग कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो, यानी प्रभु हर समय उपलब्ध है उस जरूरत को पूरा करने के लिए। We need to know how to demand from the Spirit of Jesus Christ. हमें इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि हमें परमेश्वर की यीशु मसीह की आत्मा से कैसे वो मांग ले करनी That's what, है। where there is no wisdom, people will perish. इसलिए तो वचन कहता है कि जहाँ बुद्धि नहीं, बुद्धि की कमी है, लोग ज्ञान नहीं, वहां पे वो नाश हो जाते Luke हैं। chapter 6 verse 19 says, लूका का 6:19 ऐसा कहता है, the whole multitude sought to touch Jesus, for there went virtue out of him and healed them all. बड़ी भीड़ जो है यीशु को छूना चाहते थे कि उसमें क्योंकि उसमें से सामर्थ निकल कर सबको चंगा करती थी। Look at this word very carefully. ध्यान से सुने इस वचन को। The whole multitude sought to touch Jesus. देखो, पूरी झुंड जो थी वो यीशु को छूने की कोशिश कर रही थी। For the power went out from him and healed them all. क्योंकि यीशु में से जो सामर्थ निकल रहा था वो सबको चंगा कर रहा था। Hallelujah. What does it mean? Here we see all the multitude, all the crowds, they are demanding the healing from Jesus. देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो बड़ी भीड़ जो यीशु के पीछे लगी थी वो सबकी एक चाहत थी, वो सबकी मांग थी कि वो सब लोग चंगे होना चाहते Because थे। they were demanding the healing presence of God, the power of healing presence went out of him and healed them all, the Bible says. क्योंकि उनके अंदर वो चाहत थी कि वो चंगा होना चाहते थे और उसकी वो मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, इसलिए यीशु के अंदर से वो सामर्थ निकला और सबको चंगा कर That दिया। means where Jesus is, there is healing. यहाँ यानी जहाँ पर भी यीशु मसीह है वहाँ पे चंगाई है। Where the Spirit of Jesus is, there is deliverance. जहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा है वहाँ पे छुटकारा भी है। And I believe, Lord, you are here in our midst. और मैं विश्वास करता कि प्रभु तू यहाँ पर है हमारे बीच में। And I believe God will give that power to you and me to this morning. तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु वही सामर्थ तुझे और मुझे भी देंगे आज की सुबह। Hallelujah. This is the place where you need to demand the spirit of wisdom to come upon you. तो ये वो स्थान है जहाँ पे तुम्हें प्रभु से मांगनी है कि परमेश्वर की आत्मा आपको बुद्धि का आत्मा दे दे। How do I demand the wisdom from God, the supply from God? तो अभी मैं परमेश्वर से कैसे ये बुद्धि की आत्मा का मांग कर सकती हूँ? Number one, you need to demand through worship. पहला मुद्दा, आपको आराधना के द्वारा उससे मांग करनी है। Everybody is worshiping. You're not demanding. You're looking here. You're looking there. How can the Spirit of Jesus will supply the wisdom to you and me? तो सब लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, वहां देख रहे हो और परमेश्वर से ये बुद्धि के आत्मा का मांग नहीं कर रहे हो, तो कैसे प्रभु आपको वो स्तोत्र देंगे? You need to have the thirst to worship. आपके अंदर आराधना करने की एक प्यास होना No जरूरी है। matter the worshippers are prepared or not, but you are prepared to sing that song and to glorify Jesus. भले आराधक लोग तैयार है या नहीं, लेकिन आप तैयार हो प्रभु की महिमा करने When के लिए। I enter the house of God, I'm ready to demand from Jesus through worship. तो जब मैं प्रभु के भवन में प्रवेश करता हूं तो मैं तैयार हूं उसकी आराधना करने की। Second thing, how can this supply starts from heaven? दूसरी बात है, स्वर्ग से ये सप्लाई कैसे शुरू होता है? Through prayers. प्रार्थना के, First through worship. पहले आराधना के द्वारा, Second through prayers, you are demanding the wisdom of God. दूसरा है प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से वो चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं। And number three, तीसरी through बात, your words. तुम्हारे शब्दों के द्वारा। Hallelujah. How you utter the words, so the supply of wisdom will come to you and me in Jesus' आपके मुंह से name. आप कौन से शब्द निकालते हैं उसके
अनुसार ये बुद्धि का जो आत्मा है वो तुम्हें दे दिया जाएगा। Hallelujah. Make a demand draft when you go to bank to others. जब आप बैंक जाते तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। So here you need to, when you come to the house of God, you need to make a demand before Christ Jesus. Then He will answer you. Then He will heal you. Then He will deliver you. Then He will supply the wisdom. Then He will give you knowledge. Then He will understand you. Then He will lift you up in this earth. तो इसलिए जब आप बैंक में जाते हो तो एक डिमांड, वैसे ही जब प्रभु के भवन में आते हो तो आपके सामने आपने मांगे रखना बहुत जरूरी है। जब अपने मांगों को उसके सामने रखोगे और मांगोगे तभी वो तुम्हें छुटकारा देगा, तभी वो तुम्हें जो है चंगाई देगा, तभी वो तुम्हारे सारे जरूरतों को जो तुम मांगते हो उसे पूरा करेगा। If you don't demand in the house of God to God in worship, in prayer, in your words, how can He supply your needs? तो अगर प्रभु के आराधना में जब आप आते हो, जुड़ते हो, तो आप प्रभु से अगर मांग ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की वो आपूर्ति कैसे करेगा? The Bible says Solomon built the temple. बाइबल कहते कि सुलेमान ने मंदिर को बांधा। And the Bible says the presence of God came. और प्रभु की, बाइबल कहता है कि प्रभु की उपस्थिति वहां उतर आई। And Solomon said, my house shall be called an house of prayer for the nations of the world, where God comes and answers the prayers. तो सुलेमान ने कहा मेरा जो भवन है, घर है, वो प्रभु के लिए एक प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, जहां पे मैं सारी दुआओं को कबूल करूंगा। Just don't walk into the church without any demand. Walk into the church demanding God, today I'm coming to Sunday morning service. I am demanding you wisdom. I'm demanding you knowledge. I'm demanding business blessings. I'm demanding all my work, all my family be saved. तो कलीसिया में ऐसे ही बिना कोई अपेक्षा लिए मत आओ। कलीसिया में जब आते हो तो अपने मांग के साथ में, अपेक्षा के साथ में कि प्रभु मैं आपके पास अपेक्षा करते हो कि आप मुझे आपके बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे, आपके ज्ञान से परिपूर्ण करेंगे, और आपकी बुद्धि मेरे बिजनेस में मुझे सहायता करेगी या मेरे कामों में मुझे सहायता करेगी। वो एक मांग को लेकर आपको आना है भवन में। This is a pulpit. ये तो वेदी है। The presence of God flows from here. यहाँ से प्रभु की उपस्थिति बहती है। What is a pulpit then? तो वेदी क्या है? When you are standing in front of the pulpit, जब आप उस वेदी के सामने खड़े you हो, need to stand like Ezra. आपको एजरा जैसा खड़ा The होना Bible है। says Ezra stood for 9 hours. बाइबल कहता है एजरा 9 घंटे के लिए खड़ा था। Hallelujah. He was remaining standing to hear God. God speak to us. God speak to us. 9 hours he was standing and demanding God to speak to him. वो 9 घंटे लगातार निरंतर प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहा और अपनी मांग प्रभु के सामने डालता रहा कि प्रभु तू हमसे बातें कर, हम तुझसे सुनना चाहते Oh हैं। Ezra, why are you standing for 9 hours? एजरा तू 9 घंटे के लिए क्यों खड़ा है? God, I want these people who are in bondage to come out of bondage. I'm standing for 9 hours demanding the deliverance to these people. प्रभु मैं चाहता हूं कि ये लोग जो बंधन में हैं, ये सारे लोग छुटकारा पाए। Hallelujah. इसलिए मैं तेरे सामने ये मांग रख रहा हूं कि वो छुटकारा पाए। Yes, I am demanding you. They should come out of the bondage of the enemies. मेरी मांग यही है कि ये शत्रु के जो बंधन में जकड़े हुए वो पूरी तरह से आजाद हो जाए। This is the kind of the anointing at the pulpit. और एक अभिषेक होता है वेदी के ऊपर। Hallelujah. When we come through prayers, जब हम प्रार्थना के द्वारा when आते the हैं, worship is offered, जब आराधना when the prayers are offered, चढ़ाई जाती, प्रार्थना when चढ़ाई the जाती, service is done, जब सभा खत्म होती or है when the service is on, और जब सभा शुरू there is है, something you need to demand. आपने प्रभु से आप कुछ मांग करनी है। If you don't demand, how you can receive it? अगर आप मांगते ही नहीं हो तो आप कैसे पाओगे? Hallelujah. The greater the demand in this place, the greater the supply will be for you. जितना तुम ज्यादा मांगोगे उतना ज्यादा वो तुम्हें देता रहेगा। Hallelujah. In the house of God, you need to put the greater demand
demand before God, and God will give the greater supply for you and me. देखो, प्रभु के भवन में, मंदिर में जब आते हो, प्रभु के सामने अपनी बड़ी बड़ी मांगे को रखनी है, और जितनी बड़ी मांगे होगी उतनी बड़ी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। If you are sitting neutral, there will be no supply. आप ऐसे न्यूट्रल बैठे रहोगे तो वो कुछ भी नहीं दे You सकेगा। need to demand. Better you demand आपने today. मांग करनी है। आप जो मांग करते हो आज, Today you demand, next Sunday come and give glory to Jesus. आज आप मांग करें और अगले इतवार प्रभु को महिमा दे। Can I hear an amen? No demand, no miracles. आप अगर मांगोगे नहीं तो आप चमत्कार No नहीं demand, देखोगे। no blessings. अगर आप मांग नहीं करोगे तो आशीष भी नहीं Demand, पाओगे। I need a boy for my life, man for my life to get married. आप प्रभु से मांग करें कि प्रभु मुझे विवाह Demand. करनी है, मुझे एक लड़का, एक अच्छा आदमी चाहिए। घर पे बैठ के डिमांड करेगा तो कैसा होएगा? God, Sit at home and you demand, how will you God, get I need a right girl to my life. Demand in the house of the living God. it? प्रभु, मेरी शादी विवाह के लिए मुझे एक अच्छी लड़की की जरूरत। प्रभु के भवन में, मंदिर में जब आते हो, प्रभु से मांग करें। For example, you have a word inside you. सोचो, उदाहरण तौर पे तुम्हारे अंदर कुछ वचन You है, have an anointing inside you. आपके अंदर एक अभिषेक भी But है। if there is no thirst, but there is no supply. अगर आपके अंदर प्यास नहीं है तो प्रभु उस जरूरत को भी पूरा That's नहीं why करेंगे। many people, they know the word. इसलिए बहुत लोग वचन तो जानते हैं। They know, they're disciplined by the word. They walk disciplined. देखो, वो इतने अनुशासित है, वो वचन के अनुसार चलते भी है। But the supply source is cut because they know the word, they have the anointing, but there is no demand. देखो, लेकिन उनका जो सोत्र जो है, उसका जो आपूर्ति है वो पूरा कट चुका है, क्योंकि वो वचन तो जानते हैं, वचन घोषित करने को भी जानते हैं, लेकिन उनके अंदर से प्रभु के लिए The word. कुछ मांगते ही नहीं The है। word, the anointing, वो वचन जो अभिषेक है, take it with thirst. उसे प्यासे होकर ले लो। Today I'm preaching. आज तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। You are looking here and there, you're not a demander. अगर आप यहाँ वहाँ ताक रहे हो, देख रहे हो, तो आपके अंदर आप प्रभु से कुछ अपेक्षा ही नहीं कर You are रहे a persecutor, आप एक सताने वाले व्यक्ति हो, like Saul. सौल जैसे। You know, people were praying, Saul आ रहा है, everybody is distracted. लोग प्रार्थना कर रहे थे, किसी ने कहा अरे सौल आ रहा है, तो सब लोग जो प्रार्थना करना बंद करके जो है यहाँ वहाँ मन But भटकाने लगे। Damascus church was not like that. लेकिन दमस्कस की कलीसिया वैसे Damascus नहीं was थी। demanding before the Lord Jesus. तो दमस्कस की कलीसिया ने अपनी मांग रखी थी प्रभु यीशु के Lord, सामने। touch Saul. प्रभु तू सौल को Change छू, him. उसे बदल दे। Suddenly the power of God came upon Saul and he अच्छा। became Paul. अचानक प्रभु का साबत सौल के ऊपर आया और वो बदल गया, पौलुस बन गया। I want to tell you, thirst for the word, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वचन के लिए प्यासे हो जाओ। thirst for the anointing. अभिषेक का प्यास रखो अंदर। With hunger, ask God, demand God. He will give you the revelations from तो एक heaven. भूखे भूखे हो जाओ और प्रभु से प्यासे होकर प्रभु से वो मांगो और वो तुम्हारे प्यास को पूरा कर देगा। Have sincere faith in you, आपके अंदर ईमानदारी से एक विश्वास रखे and the supply will come from the Spirit of Jesus, that is Holy Spirit. और तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी वो परमेश्वर की आत्मा के When the द्वारा। Holy Spirit is moving, जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, respond to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया If दिखाओ। somebody is shaking and praying, अपने don't आप को- look at them and make fun. Oh God, I also need this anointing upon my life. तो अभिषेक से जब लोग भर जाते हैं और वो चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं तो उनका मजाक मत उड़ा। आप कहो कि प्रभु मुझे भी ऐसे अभिषेक की जरूरत Lord, I है। demand, I need the move of the Holy Spirit in me. कहो कि प्रभु मेरी मांग है कि मैं भी ऐसे पवित्र आत्मा मेरे अंदर के द्वारा चलन करने की In the अपेक्षा end करता हूँ। times, you need to be a demander in Christ Jesus. तो अंतिम समय में आपको प्रभु से मांगने वाले व्यक्ति बनना जरूरी If है। you are a demander or a seeker of Christ, the supply will be the source of heaven. तो अगर आप एक ऐसे मांगने या डिमांड करने वाले व्यक्ति हो तो आपका स्तोत्र स्वर्ग से उतर आएगा। Amen. आप You सब- need to draw out from the presence of God. आपको प्रभु की उपस्थिति से उसे लेना सीखना है। You put a straw in the glass, आप एक ग्लास में एक स्ट्रॉ डालते हो, put your mouth, मुंह डालते हो उसके अंदर। but if you don't draw, it will be there. अगर आप उसको चूसोगे नहीं तो वो पानी अंदर नहीं आएगा। Mama, जूस it's अंदर not नहीं- coming. तो कहेगा मम्मी नहीं आ रहा है, Dada, it's not coming. डाड़ा वो नहीं आ रहा है मुंह Dada, में। mama is telling, draw it, suck it. तो मम्मी कहेगी या डैडी कहेगा कि कैसे उसे तो चूसो उसको Hallelujah.
if that straw, how if the blessings comes from you need to draw from the presence of Jesus. तो आशीष कैसे आएगी? प्रभु के उपस्थिति से उसे तुम्हें मांग लेना है. Like how you suck from the straw, कैसे you वो need straw to में suck से हम it लोग from the चूस के presence of लेते God. हैं, वैसे प्रभु के उपस्थिति से भी उसे Come लेना on, give the है. hands to the Lord. Hallelujah. प्रभु को जोरदार तालियां दे. Shall I tell you the good news this time? आज सुबह एक अच्छी खबर आपको दूं. God is willing to give you, प्रभु तो तैयार है तुम्हें देने के लिए, but you need to make the demand on the Holy Spirit. लेकिन आपने परमेश्वर की आत्मा से वो चाहत भी रखना जरूरी है. Holy Spirit, I need it. कहना, पवित्र आत्मा मुझे ये चाहिए. I need the gifts of 9 fruit of the Spirit. मुझे तेरे 9 वरदान की जरूरत है. Holy Spirit, I need it. पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा, मुझे ये The 9 वरदान greater चाहिए. the demand, the greater the provision comes from the presence of God, or greater the supply will be given to you. जितना ज्यादा आप प्रभु से मांगोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें उसका प्रयोजन करके दे देंगे. This morning God says, I'm willing to give you. आज सुबह प्रभु कहता है, मैं तो देना चाहता हूँ तुम्हें. Hallelujah. Are you a person demanding on the Holy Spirit to receive क्या it? तुम वो व्यक्ति हो जो पवित्र आत्मा से किसी चीज की अपेक्षा कर रहा है?